Hello students, today we will discuss about our next article, that is vector form of Coulomb's law and its importance. In our previous lecture we have discussed about the Coulomb's law. Coulomb's law ने हमें एक एक्सप्रेशन दिया था और वो एक्सप्रेशन है दैट इज F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 upon R square. This expression given by the Coulomb's law, and this expression gives us a force, and this force is called Coulomb's force because this expression of force is derived by Coulomb's, and hence this force is known as Coulomb's force. And this is the force which is present between the two charges which are in the state of rest, which are static, and hence this force is also known as electrostatic force. तो इस फोर्स के दो नाम हैं, Coulomb's force और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और ये जो Coulomb's फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये दो स्टेशनरी स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के बीच में पाई जाती है. और ये फोर्स एक चार्ज दूसरे पे लगाता है और उतनी ही फोर्स पहले वाला चार्ज दूसरे पे लगाता है. मतलब ये दोनों पॉइंट चार्जेस एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगाते हैं. जितना एक लगाता है उतना ही दूसरा पहले के ऊपर फोर्स लगाता है. ये दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्सेस लगाते हैं. और इस फोर्स का, ये जो दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं इक्वल, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, भाई कितनी ये फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हम ड्राइव करते हैं, डिटरमाइन करते हैं with the help of this expression which is given by the Coulomb, and hence this is also known as Coulomb's law, mathematical form of Coulomb's law. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एक्सप्रेशन है which gives us Coulomb's force, which gives us electrostatic force between these 2 point charges, ये केवल हमें इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ही बताता है एक्सप्रेशन, भाई कितनी फोर्स लगाई. बट वी नो दैट दिस फोर्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. बट दिस एक्सप्रेशन ओनली टेल्स अस अबाउट द मैग्नीट्यूड. And you know that magnitude is a scalar. Scalars having only magnitude. It means this expression is also known as scalar forms of Coulomb's law, because this expression, this Coulomb's law, only gives us the magnitude of the force which is exerted by 2 point charges on each other. But force is vector quantity. फोर्स का तो हमें पता लग गया, भाई इतनी फोर्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं दोनों चार्जेस, लेकिन डायरेक्शन का हमें इससे कोई पता नहीं लग रहा है. जो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं उनकी क्या डायरेक्शन होगी. तो इस Coulomb's फोर्स की, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम एक्सप्लेन करते हैं एक और आर्टिकल
which is known as vector form of Coulomb's law. And this vector form of Coulomb's law gives us the direction of this force, direction of this Coulomb's force, direction of this electrostatic force. Now students, in this chapter, in this article, we will discuss about the vector form of Coulomb's law and its importance. Now to explain the vector form of Coulomb's law, we will consider two point charges which are in the state of rest, charge Q1 and Q2. But these two charges must be similar charges. ये दोनों Q1 Q2 charges कैसे होने चाहिए? Similar charges होने चाहिए. Either they are positive charges or negative charges. Hence we consider two similar charges Q1 and Q2 which are placed at a distance are in vacuum or free space or air. Now these are like charges and hence they repel each other. They exert equal repulsive forces on each other. Now this force F12, this is first force F12 vector. ये जो F12 vector है, this is the force which is acting on charge Q1 by the charge Q2. अब देखिए इसको कैसे याद रखना है. ये जो फोर्स है ये लग रही है Q1 चार्ज के ऊपर. तो हमने जिस चार्ज पे फोर्स लग रही होती है उसका हमने पहले लिखा होता है. अब Q1 पे फोर्स लग रही है, 1 पे लग रही है तो 1 हमने पहले लिखा है, और लगाने वाला Q2 है तो लगाने वाले का हमने बाद में लिखा है 1 2. It means F12 vector, this is the force acting on Q1 charge by the Q2 charge. Now similarly, another force F21 force means 2 पहले लिखा है, इसका मतलब this force is acting on charge Q2, 1 बाद में लिखा है. It means ये फोर्स कौन लगा रहा है? Q1 चार्ज लगा रहा है. तो ये आपने याद रखना है. ठीक है. तो here we consider two similar point charges Q1 and Q2 separated by the distance r and placed in vacuum, air or free space. Now let us consider F12 vector. अब F12 vector क्या है बता चुके हैं आपको. फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 बाय Q2. अब देखो 1 पहले लिखा है, F1 मींस फोर्स 1 के ऊपर लग रही है, चार्ज Q1 के ऊपर. 2 बाद में लिखा है, इसका लगाने वाला कौन है? Q2 है. तो हम कहेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 बाय Q2. नाउ नेक्स्ट फोर्स हमने कंसीडर किया है F21 वेक्टर. तो F21 वेक्टर ये देखिए, ये फोर्स Q2 पे लगी है, इधर को डायरेक्शन की हुई है हमने. तो F21 फोर्स को हम क्या पढ़ेंगे? फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2, 2 लिखा है पहले, Q2 बाय Q1. नाउ इसके बाद हम 2 यूनिट वेक्टर्स लेंगे. यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर लेंगे हम, that is R12 cap. You know that unit vector आपको पता ही है, ये it always gives us the direction of a given vector. ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है. तो हम 2 यूनिट वेक्टर्स लेंगे यहां पे. एक लिया हमने R12 कैप. अब देखिए ये जो R12 कैप यूनिट वेक्टर है, ये इसकी जो डायरेक्शन है ये है, अगर 1 पहले लिखा है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन है Q1 चार्ज से Q2 चार्ज की तरफ. इट इज पॉइंटिंग फ्रॉम चार्ज Q1 टू Q2. अब देखो R12 कैप यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन Q1 टू Q2,
देखो R1 टू कैप, अब देखो लिए ना नहीं Q1 से Q2 की तरफ। इसी प्रकार एक और यूनिट वेक्टर कंसीडर करेंगे हम R21, ये देखिए सेकेंड यूनिट वेक्टर R21 कैप, ये अब देखो 2 पहले लिखा है, इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी, ये जिस डायरेक्शन को बताएगा वो होगी Q2 चार्ज से Q1 चार्ज की तरफ। तो ये आपने याद रखना है। Here we consider 2 unit vectors, that is R12 cap, which is pointing from Q1 to Q2, and second unit vector is R21 cap, and this unit vector pointing from charge Q2 to Q1। ये 2 यूनिट वेक्टर्स भी हमने ले लिए। Now here this is the Coulomb's force which is acting on charge Q1 by Q2। इसको हम कंसीडर करते हैं। ये फर्स्ट फोर्स हमने ले ली F12 force। Now according to Coulomb's law we can calculate this force। Coulomb's law लगा करके हम, this is Coulomb's law, इसको लगा करके हम इस फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस Coulomb's फोर्स को which is acting on charge Q1 by Q2, Q1 के ऊपर लग रही है, Q2 लगा रहा है। इस फोर्स का हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं by using this Coulomb's law, because Coulomb's law only gives us the magnitude of the electrostatic force, Coulomb's force। तो ये जो Coulomb's फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, चार्ज Q1 के ऊपर लगी है और Q2 लगा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस Coulomb's लॉ। तो क्या होगा, देखिए मैग्नीट्यूड इसका 1/4πε0 एंड Q1 Q2 अपॉन R²। क्योंकि देखिए ये फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच में है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड और उनके बीच की दूरी का स्क्वायर, यही बोलता है Coulomb's लॉ। निकाल लिया हमने मैग्नीट्यूड, लेकिन हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। वेक्टर फॉर्म में, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर फॉर्म में लिखना। अभी तक हमें इस फोर्स का मैग्नीट्यूड का पता लगा है बाय यूजिंग द Coulomb's लॉ। हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो बनाइए वेक्टर। अब हम लिखेंगे F12 वेक्टर। अब देखिए ये जो वेक्टर है, वेक्टर के पास 2 चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब इसका मैग्नीट्यूड आपको पता ही है, मैग्नीट्यूड क्या है, निकाल चुके हैं हम, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², ये होता है मैग्नीट्यूड। लेकिन अब हम डायरेक्शन लिखेंगे यहाँ पे, क्या डायरेक्शन है इसकी, इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया हमने, अब इसकी डायरेक्शन लिखनी है। अब देखो इसकी डायरेक्शन क्या है, और देखो डायरेक्शन ये है इसकी, ये है, दैट इज इस तरफ फ्रॉम Q1 टू Q2, इस डायरेक्शन। अब डायरेक्शन हमें कौन देता है, यूनिट वेक्टर देता है। तो हमें वो यूनिट वेक्टर लिखना है जो इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है, दैट इज R21 कैप, R21 कैप। तो हमारे पास बन गई वेक्टर फॉर्म, Coulomb's फोर्स की वेक्टर फॉर्म बन गई, दैट इज F12 वेक्टर is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 upon R² R21 कैप। ये आ गई हमारे पास। नाउ ये क्या है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ Coulomb's लॉ। ये हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास ये और ये सेम थे, ये हमारे पास Coulomb's फोर्स थी। अब हमने डायरेक्शन भी लिख दी। अब Coulomb's फोर्स के में डायरेक्शन भी मिल गई, पहले मैग्नीट्यूड ही मिल रहा था, अब ये Coulomb's फोर्स हमें मैग्नीट्यूड भी दे रही है, डायरेक्शन भी दे रही है। इट मींस हमने Coulomb's फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। ये इस Coulomb's फोर्स का F12 फोर्स का ये मैग्नीट्यूड है, दिस वन, और ये इसकी क्या है, डायरेक्शन है। तो दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज वेक्टर फॉर्म ऑफ Coulomb's लॉ। नाउ वी नो दैट यूनिट वेक्टर, लेट अस कंसीडर A कैप यूनिट वेक्टर।
ए कैप यूनिट वेक्टर। अब देखिए यहां पे हम पहुंच गए, ये पहुंच गए हम यहां पे, हमने प्रूफ कर दिया F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 कैप, ये R21 कैप। नाउ कोई भी यूनिट वेक्टर है, जैसे लेट्स कंसीडर ए कैप, यूनिट वेक्टर ए कैप, इसको हम कैसे लिखते हैं? यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास, कौन सा यूनिट वेक्टर है? R21 कैप। अब इसका क्या आएगा? R21 वेक्टर एंड R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लेकिन हमें पता है दैट इज R21 जो वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड है कितना है? ये मैग्नीट्यूड इज, भर दो यहां पे तो हमारे पास आ गया, दैट इज क्या आ गया? ये आ गया R21 कैप यूनिट वेक्टर जो होगा वो R21 वेक्टर अपॉन R21 अपॉन इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू R है। अब देखिए यही वैल्यू, ये R21 कैप की वैल्यू यहां पुट कर दो, इसमें पुट कर दी जाए। अब देखिए नाउ कीजिए वैल्यू पुट। अब देखिए जब हम R21 कैप यूनिट वेक्टर की वैल्यू ये वाली यहां पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारे पास F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये कैप की जगह ये वैल्यू भरो R21 कैप की, ये आ गई आपके पास R21 वेक्टर अपॉन R। अब देखिए ये भी R स्क्वायर और क्यूब हो जाएगा, दैट इज F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R21 वेक्टर। दिस इज आल्सो द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब देखो ये भी वेक्टर फॉर्म थी कूलम्स लॉ की, ये भी हमें कूलम्स फोर्स दे रही थी। कौन सी कूलम्स फोर्स? जो चार्ज Q2 लगा रहा है Q1 पे, दैट इज F12 कूलम्स फोर्स का एक्सप्रेशन हमने वेक्टर फॉर्म ड्राइव की। तो ये देखो ये एक्सप्रेशन हमें क्या दे रहा है? F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर R21 कैप। ये वेक्टर फॉर्म है कूलम्स लॉ की। इसमें देखिए बहुत आसान चीज है, दैट इज ये यूनिट वेक्टर की फॉर्म है, इसमें यूनिट वेक्टर है यहाँ पे, लेकिन अब हमने यूनिट वेक्टर को कन्वर्ट कर दिया वेक्टर में। अब इसी कूलम्स फोर्स को हमने लिख दिया, दैट इज F12 वेक्टर, इसको हमने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R क्यूब हो गया। ये यहां से ये एक इसके कैप को हमने कन्वर्ट कर दिया वेक्टर में। अगर यहाँ पे वेक्टर होगा तो यहाँ पे क्यूब आएगा, क्योंकि नीचे R है, R स्क्वायर पहले ही है, ये R मल्टीप्लाई करेगा, R क्यूब हो गया। तो आपने याद रखना है ये भी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ है, ये भी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ है, दोनों ही सेम चीज है। एक में अगर यूनिट वेक्टर लिखा होगा तो R स्क्वायर होगा, अगर वेक्टर की फॉर्म में आपने लिख दिया तो यहाँ पे R क्यूब हो जाएगा। है ये दोनों एक्सप्रेशन किसके हैं? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। बाकी आपने एक और चीज याद रखनी है इसमें, जब भी अगर F12 है, F12 वेक्टर 1 2 है तो यहां पे 2 1 आएगा, यहां पे 1 2 तो यहां पे 2 1 आएगा। तो देखो ये दोनों एक्सप्रेशन हमें वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ के। अब देखो ये तो हमने कूलम्स फोर्स, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स फोर्स लिखी, कौन सी फोर्स के लिए? कौन सी कूलम फोर्स के लिए? विच इज एक्सर्टेड ऑन Q1 बाय Q2। तो सिमिलरली वी कैन राइट the second Coulomb's force that is F21 which is exerted by charge Q1 upon Q2। इसको भी आप ड्राइव कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में ऑन द सिमिलर वे, ऑन द सिमिलर स्टेप्स। F21 पहले इसमें लिखिए क्या हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बिल्कुल उसी तरह ये
अब 2 1 है, अपोजिट हो जाएगा 2 1, देखो 1 2 था तो 2 1 आया उल्टा। अब यहाँ पे 2 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा 1 2 कैप। अगर आप कैप को वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो r नीचे आएगा r, और ये स्क्वायर r r³ बन जाएगा। तो दूसरा F21 वेक्टर सेकंड फॉर्म में हम लिख सकते हैं, दैट इज वेक्टर की फॉर्म में, दैट इज Q1 Q2 अपॉन r³, r12 वेक्टर आ जाएगा। अब देखिए ये भी ठीक है, ये भी क्या है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये F21 कूलम्स फोर्स को हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, ये हमने F12 फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखा था, वेक्टर फॉर्म। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये this and this, these are the vector form of Coulomb's law for the Coulomb's force F12 vector, and here F21 vector is written in the form of vector form of Coulomb's law. Now students, ये तो था vector form of Coulomb's law के बारे में। Now we will study about the इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये जो कूलम्स लॉ है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस। नाउ स्टूडेंट्स, we have derived in the vector form of Coulomb's law, we have derived that is F12 vector is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon r square r21 cap, ड्राइव कर चुके हैं। Now similarly we have derived this Coulomb force also। ये क्या है F21 वेक्टर क्या आ गया यहाँ 1 upon 4 pi Q1 Q2 r square upon this। Now we have derived, भाई एक ने दूसरे पे फोर्स लगाई, वो कितनी होगी उनको हमने वेक्टर फॉर्म में ड्राइव कर चुके हैं यहाँ पे, we have already noted। Now from here we find that two unit vectors r12 cap and r21 cap, their direction are opposite, so we can write, हम लिख सकते हैं that is r12 cap is equal to r21 cap, equal and opposite, because they are unit vectors, equal होंगे, because unit vectors having equal magnitude, तो इक्वल तो होंगे दोनों, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है इन दोनों यूनिट वेक्टर्स की, तो माइनस। वेरी सिंपल। अब हम क्या करेंगे, यही चीज पुट कर देंगे। ये अब सी को हमने इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दिया, इस सी को हमने ए में पुट कर देंगे, कीजिए पुट F12 1/4 pi epsilon naught। अब R21 कैप की जगह क्या आ जाएगा, R21 कैप की जगह ये आ जाएगा, दैट इज माइनस R12 कैप। अब इसको सॉल्व कीजिए, माइनस साइन को बाहर लाइए, अंदर क्या रह गया ब्रैकेट में 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 r square r21। अब देखो यहाँ पे R21 लगा है, तो ये कौन सी फोर्स बनी, 2 1 है, तो फोर्स बन गई दैट इज सॉरी 1 2 है, तो फोर्स बन गई 2 1। तो इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं फोर्स 2 1, तो ये आ गया आपके पास F12 वेक्टर इक्वल टू, माइनस बाहर था और यहाँ पे 1 2 है, तो कौन सी फोर्स का एक्सप्रेशन है ये, F21 का। नाउ फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, फ्रॉम हियर वी ड्राइव दैट Coulomb's force, electrostatic force are equal and opposite to each other. So this is the first importance. This is the first importance of vector form of Coulomb's law. That is, vector form of Coulomb's law states that the Coulomb's forces, electrostatic forces are always equal and opposite to each other. Equal and opposite to each other. Now देखिए सेकंड इंपॉर्टेंस देखिए,
इस कूलम्ब फोर्स को देखिए F12 वेक्टर। अब देखिए ये जो F12 कूलम्ब फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड इज दिस, डायरेक्शन इज गिवन बाय दिस यूनिट वेक्टर। R21 ने डायरेक्शन दी, इसकी यूनिट दे रखी है, जो R21 यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही इस फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो देखिए F12 कूलम्ब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जो R21 कैप की है, तो R12 कैप की डायरेक्शन ये है, ये है, ये डायरेक्शन है। इसका मतलब इस फोर्स की डायरेक्शन भी, सॉरी, इस फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी, 21, सॉरी ये 21, फोर्स F12 की डायरेक्शन क्या होगी, जो इस यूनिट वेक्टर की है R21, ये R21 की डायरेक्शन है, लेकिन R21 की डायरेक्शन है 2 से 1 की तरफ, ये डायरेक्शन है। तो जो इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन वही इसकी, तो इसकी इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ये है along दिस लाइन, तो इस फोर्स की डायरेक्शन भी along दिस लाइन है। नाउ सिमिलरली ये देखिए F21 सेकंड कूलम्ब फोर्स F21, इसकी डायरेक्शन कौन दे रहा है, इसकी डायरेक्शन दे रहा है दैट इज यूनिट वेक्टर 12 r कैप 12। तो जो r कैप 12 की डायरेक्शन होगी r कैप 12 की डायरेक्शन ये है, ये, तो इसका मतलब इस फोर्स की डायरेक्शन भी ये होगी। तो इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जो इसकी है, तो ये अलोंग दिस लाइन लग रहा है ये। अब देखो ये दोनों फोर्सेस F12 फोर्स एंड F21 फोर्स, ये दोनों किस लाइन के अलोंग लग रहे हैं, इस लाइन के अलोंग। और ये कौन सी लाइन है, विच इज ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस Q1 and Q2। And we know that, student, we have already discussed that the force which is acting along the line which is joining the center of the two bodies is known as central force. Hence, from here we can see that these two forces, F12 and F21, both Coulomb's forces, electrostatic forces, acting along the line which is joining the center of the two charges, and hence these Coulomb's forces are central forces. कैसी फोर्सेस हैं, सेंट्रल फोर्सेस। तो सेकंड इंपॉर्टेंस जो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ की, वो है भाई दोनों फोर्स, ये जो फोर्सेस होती हैं कूलम्स फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, दे आर central forces because they are acting along the line which is joining the center of the two bodies. Now, student, the third importance of vector form of Coulomb's law. Now, this vector form of Coulomb's law tells us that these Coulomb's forces or electrostatic forces are conservative forces. Coulomb's forces और इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्या होती हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, बिकॉज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और द Coulomb's force over the closed path is 0, and hence such forces are called conservative forces. Due to this reason, we can say Coulomb's forces or electrostatic forces are conservative forces. So these are some importance of the vector form of Coulomb's law. So students, here today we have discussed about the vector form of Coulomb's law, as well as some important properties of the vector forms of Coulomb's law. That is the importance of vector form of Coulomb's law. तो अंत में मैं आशा करता हूं आप सबसे कि आपको आज का मेरा आर्टिकल समझ आया होगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।